Why English is speaking such a big problem when so many people already know the language? Speaking is a problem because speaking is not done. जब आप पैदा हुए, जब आपने बोलना सीखा, क्या आपकी नेटिव लैंग्वेज में भी आप उतने ही अच्छे थे? You were speaking broken sentences. Your tenses used to go wrong. Your gender used to go wrong. मैं खाऊंगा की जगह मैं खाऊंगी बोलते थे. There were things that you were copying others and doing. Right. धीरे धीरे you got better with it. Right. English needs that consistency of practice. So, ma'am, there are thousands of English courses available today. Why you are confident about your course? आज भी मुझे मॉनिटरिंग करना है. आई डू ट्रस्ट माई टीम. आई एम टेलिंग यू, बैकबोन है मेरी बिजनेस का. वो लोग तभी सही चल सकता है इफ आई नो कि सही क्या है, तभी तो मैं दूसरों को सही कर सकती. Hi everyone, this is Preksha Pandey. Today we are talking to Sakina Javed, founder of English Destination. Over the year, she has helped hundreds of learners improve their English communication skills. We'll discuss why so many people struggle with English, how English Destination was born, and what make it approach different. Welcome Sakina ma'am to our studio. Thank you so much. Thank you, Preksha. Let's start with the biggest question. What problem are you actually solving? Okay, so basically what learners come to me with is a different mindset. उनको ये लगता है English is the problem. English is not the problem. और सबसे पहले हमें उन्हें वही समझाना होता है जो मैं आपके इस क्वेश्चन में आपको समझाऊंगी. You have learned English over the years. Right. कोई भी मीडियम से आप पढ़े हो, English language is a must. You know the grammar, you know the rules, you know the vocabulary, you know what I'm speaking right now. How do you know it? If I talk in French, आपको नहीं समझ आएगा. I'm talking in English, आपको समझ आ रहा है. That means you know the language. Language is not the problem. Communication in that language is a problem. इसका डिफरेंस पहले हम अपने लर्नर्स को समझाते हैं. क्या मतलब है? लैंग्वेज आती है बट उसमें एक्सप्रेस करना मुझे नहीं आता है. What is the reason behind this? The reason is क्योंकि जो चीज़ सिखाई गई वो आती है. हमें लैंग्वेज सिखाई गई, क्वेश्चन आंसर्स थे, लिटरेचर था, प्रोज था, पोइट्री थी, ग्रामर के एक्सरसाइजेस थे, हम वो सब करेक्टली कर लेते हैं. किसी ने स्टेज पे खड़े होकर इंग्लिश में बोलना सिखाया ही नहीं. Right. किसी ने फ्रेंड से आपस में इंग्लिश में बात करना सिखाया ही नहीं. Right. Expressing your thoughts in English is the challenge of today's India. And this is in every corner of India. That is the problem that I'm trying to solve. मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखाऊंगी, इंग्लिश आप सीख कर आए हो. उसके आगे कैसे बढ़ना है. हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश ठीक है, अगर मैं उनको एक रिटन एग्जाम दूंगी, लेकिन बोलने में, एक सेंटेंस बोलने में उनको दिक्कत हो रही है. वी स्टार्ट फ्रॉम देयर. वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सप्रेसिंग इंग्लिश and then slowly take you to scenarios of expressing English, wherein you express English in front of your boss, in front of 10 people, in front of 100 people, in front of your friends, casual conversations, formal conversations. All of that is included in the trainings we give in English Destination. Okay. So, ma'am, my next question is why English is speaking such a big problem when so many people already know the language? Okay, so speaking is a problem because speaking is not done. Practice होती है जो आपको सही करती है. You have been speaking in your native language from your birth till now. जब आप पैदा हुए, जब आपने बोलना सीखा, क्या आपकी नेटिव लैंग्वेज में भी आप उतने ही अच्छे थे? Were you good in your Hindi? You were speaking broken sentences. Your tenses used to go wrong. Your gender used to go wrong. मैं खाऊंगा की जगह मैं खाऊंगी बोलते थे. There were things that you were copying others and doing. Right. धीरे धीरे you got better with it. Right. English needs that consistency of practice. आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैंने बुक्स पढ़ ली हैं, मैंने वीडियोस देख लिए हैं, मैं एकदम से बोलना सीख जाऊंगा. तो प्रॉब्लम है कि आपको स्कूल, कॉलेज, फॉर दैट मैटर इवन आफ्टर कॉलेज, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे सारा का सारा ध्यान देकर आगे बढ़ाया गया. व्हेन यू आर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, व्हेन यू हैव टू फेस योर करियर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश आती है? ये क्वेश्चन तब क्यों नहीं पूछा गया था जब आप शायद 10th दे रहे थे, या आप 12th दे रहे थे, या आप कॉलेज में थे. इंजीनियरिंग की डिग्रीज लेकर, MBA की डिग्रीज लेकर हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैम इतने अच्छे कॉलेज से सब कर लिया बट जॉब के लिए इंग्लिश चाहिए है. That's such a petty thing. That's so wrong being done to our students.
इतनी हाई फीस लेकर लैक्स एंड लैक्स देव कंप्लीटेड देयर प्रोफेशनल डिग्रीज, बट द बेसिक, या तो आप उसको बेसिक एक सोर्स मानो ही नहीं. इंग्लिश इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपके पास डिग्री है, आपके पास टैलेंट है, आप आओ. बट पीपल आर नॉट जजिंग दैट वे. इंग्लिश हैज बिकम अ मैंडेट फॉर एनीवन गेटिंग इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश ठीक करके आओ, डिग्रीज तो ठीक है, इंग्लिश ठीक करके आओ, तब हम आपको लेंगे. When it is such a mandate, it had to be inculcated in the syllabus from the beginning. वो चीज़ हुई नहीं, तो वो चीज़ को enhance करने के लिए that gap हम bridge करते हैं कि जब आप कॉलेज में या स्कूल में अपना कम्युनिकेशन ठीक नहीं कर पाए, हम उसको ठीक करेंगे कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो. एंड दैट इज़ नॉट जस्ट द बिगनिंग ऑफ योर करियर. हमारे पास 10 years, 15 years, 20 years ऑफ एक्सपीरियंस वाले लोग आते हैं विद द सेम प्रॉब्लम. 10 साल से एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, एक बंदा अच्छा इंग्लिश बोलता हुआ आया, उसको प्रमोशन मिल गया या उसको मेरे से हायर पोजीशन मिल गई, मैं अभी भी यहीं अटका हूँ बिकॉज ऑफ माई इंग्लिश. दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व फॉर आवर लर्नर्स. Okay, all right. So, ma'am, I wanted to ask you, why do you think traditional English learning doesn't work for so many people? Okay, so like I told you in the first question also, कि English learning is not the problem. अगर आपको इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह समझना पड़ती तो आप बुक्स पढ़ते, आप यूट्यूब वीडियोस देखते, आप कोई भी AI ऐप से इंग्लिश को अपनी बेटर कर लेते. बट नो, over here it has to be practice. See, there are 3 things. Number 1, it's practice. You have to keep talking in English to get better. मेरा मैंने खुद बनाया हुआ एक स्लोगन है, to speak better in English you have to speak more in English. Getting it? तो you have to be in the swimming pool to learn swimming. आप बाहर बैठ के दूसरों को स्विमिंग करते देखकर नहीं सीख सकते हैं. Right. Getting it? डूबने का डर है, घुसना पड़ेगा, आपको पानी में जाना पड़ेगा. बिल्कुल. नाउ यू कैन नॉट गो अलोन, पानी से डर लगता है, मैं डूब जाऊंगा, गेट अ कोच. दैट इज वेयर आवर इंग्लिश ट्रेनर्स कम इनटू द पिक्चर. आप मिस्टेक्स कर रहे हो, दूसरी आपके मिस्टेक्स पे हंस रहे हैं और वो मिस्टेक्स आप करते जा रहे हो, ऐसी प्रैक्टिस से क्या मतलब है? तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको प्रैक्टिस करना है, कल से अपने ऑफिस में जाके सबसे इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो. मुझे पता है जब आप गलती कर रहे हो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं गलत काम को करता चला जाऊं. आपको अपनी इंग्लिश सही करनी है. तो फीडबैक, नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 कम्स फीडबैक. यहाँ पर आपको ये नहीं बोलना था, ये बोलना था, यहाँ पर ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ये वोकैबुलरी वर्ड आपने गलत यूज़ किया, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गलत था. एवरीथिंग वी गिव अ प्रॉपर फीडबैक. एंड नंबर 3 कम्स अ प्रॉपर इम्प्रूवमेंट स्केल. एक हफ्ता पहले मैं कहाँ था, आज कहाँ हूँ. 1 month back where I was, today where I'm standing. 3 months back where I was, today where I am. You have to understand that you're growing, you are improving with this practice and feedback. That is the whole roadmap, that is the whole procedure that will help you. Listening, बहुत अच्छा लगा, सुन लिया मैंने, 1 घंटे YouTube वीडियो सुना, उसके बाद what? Did you go and express it to someone? It is all in your thoughts. English ऐसे नहीं आ सकती. Traditional methods have wasted a lot of time of students. We also have YouTube videos. But what we do, ये वीडियो कल क्लास में सुन के आइएगा and tell me in English what you understood from that video. Listening and speaking, reading and speaking. So every practice of ours is connected to speaking after all. That is what helps you to practice more. From that practice comes feedback, and from the feedback you get to know how much better you are becoming in every class. Right. Agree, ma'am. Agree. So, ma'am, my next question is with you, is that how did your journey begin? Was there a specific moment when you know this could become a business? Okay, so there's a long story behind it, but then अगर मैं अपनी story सुनाने लग गई तो I think हमारा पूरा podcast उसमें जाएगा. So I'll just cut it short. I had nothing to do with English communication as a training. Okay. My English was good from childhood, of course, because I was blessed to study abroad. I was with my father in Gulf. Okay. तो English as a blessing मुझे आ गई. मुझे पता भी नहीं था this is a blessing for me. मैं तो बड़ी casually पूरे time English में बात करती थी. मुझे लगता था ऐसे ही होता है. Okay. When I came to India, my first shock was schools में English नहीं बोलते हैं. आपस में English नहीं बोलते हैं. So that was how I started.
Now I was into a finance career Okay. and I was going very well with my career. Okay. But then, of course, career break, family responsibilities, babies. I took a break, Okay. and now was 7 years ka break was like I cannot go into that full-time office job, and I don't have that kind of experience to get paid that way. Let me explore something else. Hmm. Sitting at home and teaching English, communication to learners was a career that I identified. I got into this career. मैंने एक training ली communication and soft skills की, and I got a certificate and I started teaching learners, and mostly my learners, and I've never taught kids in fact. Mostly my learners had been adults, working professionals, students, that way. New आई हूँ मैं इस career में, but then I started seeing the gaps. I started identifying the problems, and I started bringing up new ideas, new activities, new methodologies in my teaching. मैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करती थी, बट वहाँ जो कोर्स कंटेंट होता था उसके अलावा मैं बहुत कुछ उसमें इंक्लूड करने लग गई. दैट इज वेयर आई अंडरस्टूड आई हैव समथिंग इन मी, जिससे कि एक डिफरेंस पड़ रहा है. स्टूडेंट डोंट वांट टू लीव मी, दे आर हैविंग ग्रेट रिजल्ट्स, आई एम बिकमिंग इंग्लिश गॉड फॉर देम. मुझे ये लगा व्हाई टू लिमिट दिस. आई कैन मैक्सिमम टेक 10-12 स्टूडेंट्स इन अ डे. दैट वाज व्हाट आई वाज टेकिंग एट दैट टाइम. व्हाई नॉट क्रिएट अ कोर्स, ट्रेन मोर ट्रेनर्स, और जो मैं 10-12 स्टूडेंट्स के साथ कर रही हूँ वो हम हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कर सकें एज अ होल टीम. एंड दैट इज वेयर दिस थिंग केम इन माई माइंड. बिलीव मी, कोई रेवेन्यू टारगेट्स नहीं थे, कोई बिजनेस प्लान नहीं था. माई फैमिली यूज्ड टू sit and tell me, what's a business plan? And I'm like, what plan? I don't know anything about business plans, and what is that pitch deck? Okay. कुछ नहीं था मेरे पास. मेरे पास एक आइडिया था कि आई न्यू दिस विल वर्क. तो आई ऑलवेज थॉट कि मैं अगर इन मेथोडोलॉजीज को अगर एक साथ एक कंटेंट में कोर्स में लेकर आती हूँ, आई कैन मेक अ डिफरेंस. तो आई रिजाइन फ्रॉम दैट जॉब. फॉर अ फ्यू मंथ्स आई वर्कड ऑन द कंटेंट. कोर्स स्ट्रक्चर में ये लाना है, वो नहीं लाना है. आई क्रिएटेड अ कोर्स विद द हेल्प ऑफ माई कंटेंट टीम, एंड देन आई हायर ट्रेनर्स. और ट्रेनर्स को ट्रेन किया कि ये कंटेंट है, आपको ये फॉलो करना है. इस कंटेंट के साथ जब हम फॉलो करेंगे, आप मुझे बताओगे क्या गलतियां हैं, मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके चेंज करूंगी. बाय गॉड्स ग्रेस, जो हमारे फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आज तक मुझसे कनेक्टेड हैं. मैम ग्रेट रिजल्ट्स, मैम यहाँ इंटरव्यू क्रैक हो गया, मैम यहाँ प्रमोशन मिल गया, मैम ये हो गया, मैम वो. ओह वाओ, इतना अच्छा चल गया मेरा कोर्स. मेरे ट्रेनर्स आके मुझसे कह रहे हैं, सकीना द कोर्स इज फैबुलस, हमें पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा रिजल्ट्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स में. I don't know how I did it, but in the first go, my course was perfectly done. And जैसे जैसे और स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व होने लगे और ट्रेनर्स उसको सिखाने लगे, यही रिजल्ट्स का फीडबैक मुझे into 10 into 100 आने लगा. Till now, I'm still saying that I'm not running a very big business. But I know अगर मेरे पास महीने में 25, 30, 50 स्टूडेंट्स भी आ रहे, I am sure, I'm promising them that I can improve their English, and I'm just sticking to that promise. So that is the confidence that I have. So, ma'am, there are thousands of English courses available today. Why you are confident about your course? Okay, like I said in my previous question, कि feedback मुझे students और trainers से मिला that gave me that confidence that this course is working well. Now, one thing I saw more that I can compare myself with the market is, I, being an English coach, created a course, gave it to the trainers, and spread it among the students. To start with an English communication business, you don't have to be a businessman. अगर आप मार्केट में जाके देखेंगे, आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनीवन, लेकिन जो एजुकेशन इंडस्ट्री से आके एजुकेशन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फ्लोरिशिंग. जो एंटरप्रेन्योर्स विद बिजनेस बैकग्राउंड्स कि हम ऐसे स्केल करेंगे, हम ऐसे रेवेन्यूज लाएंगे, हम ऐसी टीम्स क्रिएट करेंगे, दैट डजंट वर्क. दैट हैज गॉन डाउन. सो कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट ये नहीं था कि मुझे मंथ में इतने स्टूडेंट्स चाहिए ही चाहिए, मुझे मंथ में इतना रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए. अगर मेरे 10 स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, मैं उनके क्लासेस मॉनिटर कर रही हूँ, क्लास सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव 100 ट्रेनर्स, उसमें से 98% आर गुड, 2% प्रॉब्लमैटिक भी निकले कि मैं उनको कुछ और बता रही हूँ, वो कुछ और कर रहे हैं, वीडियोस ऑफ करके क्लास ले रहे हैं खाना बनाने में.
Okay. I faced all of that and कहीं ना कहीं जब मैंने उसको आइडेंटिफाई किया I had to let them go. तो परफेक्शन नहीं आ रहा था, आज भी वो चीज़ है, आज भी मुझे मॉनिटरिंग करना है. आई डू ट्रस्ट माई टीम. आई एम टेलिंग यू, बैकबोन है मेरी बिजनेस का वो लोग. ट्रेनर्स घर बैठ के रात के 10 बजे तक 10:30 बजे तक क्लासेस ले रहे हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के, एंड दे चेंजिंग देयर लाइफ फॉर गुड. Right. आई एम थैंकफुल टू दोस ट्रेनर्स. बट कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, आई एम नॉट गेटिंग टू नो. आई एम सिटिंग Right. एट माई होम. Right. Right. तो ये पूरा नेटवर्क तभी सही चल सकता है इफ आई नो कि सही क्या है, तभी तो मैं दूसरों को सही कर सकती हूँ. बिल्कुल. So I can be confident on my course. I'm not bragging of course, but ये चीज़ के मैं confidence इसीलिए अपने students को देती हूँ कि I know जहाँ कुछ गलत जा रहा होगा मैं उसको सही कर पाऊँगी. And I am not looking at numbers. I'm not looking at this. I'm not looking at this like a business. I'm looking at this like, of course I'm running a business. I'm earning money out of it, but I'm being fair in it. I'm seeing कि results आ रहे हैं तब मैं आपसे पैसा ले रही हूँ. I'm not just making a fool of you. I would not like to name companies, but somewhere or the other, बहुत लोगों का ट्रस्ट टूटा है मार्केट में और हम वो फेस करते हैं. हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैम 10 जगह पैसा दिया और वेस्ट हुआ और ये हुआ और वो हुआ, मैं आपको कैसे ट्रस्ट करूँ. एंड देन जब उनके गुड रिव्यूज मिलते हैं मुझे, दैट इज व्हाट validates me and that is what keeps me going कि हाँ भाई सही काम कर रहे हैं. Right. That is what is happening. Right. Ma'am, can you just explain your methodology? Sure. तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हमारा एक कोर्स कंटेंट है एंड जस्ट बिकॉज वो अच्छे से चला है, आई टेल माई ट्रेनर्स ब्लाइंडली इसको फॉलो करो. आई नेवर से कि बस यही करना है. Okay. यू हैव योर ओन थिंग्स एंड वो लोग आके मुझे भी सजेशंस देते हैं, सकीना व्हाई नॉट ये भी इंक्लूड करो, व्हाई नॉट वो भी इंक्लूड करो. आई सेड प्लीज लेकर आओ, मैं करती हूँ बिकॉज दे आर ऑल लर्नड, दे आर ऑल एक्सपीरियंस्ड. तो उनके भी इनपुट्स मैं लेती हूँ, बट जो मेरी मेथोडोलॉजी है, जो मेरा स्ट्रक्चर है, वो तो आपको फॉलो करना ही करना है. आफ्टर दैट आप अपना एक्स्ट्रा कुछ लगाओ. अब मैं ये क्यों करती हूँ, बिकॉज मेरा जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी अलाइंड टूवर्ड्स रिजल्ट्स. हमारे स्ट्रक्चर में रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब है. एवरीडे स्पीकिंग होगी, स्पीकिंग के साथ कोई और एक एक्टिविटी होगी. 75% ऑफ द क्लास स्टूडेंट स्पीक करेगा, 25% ट्रेनर स्पीकिंग करेगी और अपना फीडबैक देगी, अपने इनपुट्स देगी. तो ये सारी चीज़ों को मैं अबाइड करवाती हूँ. एवरी 15 डेज इवैल्यूएशन होगा. वो इवैल्यूएशन मेरे पास आएगा, मैं मॉनिटर करूंगी डे 1 से डे 15, डे 15 से डे 30, डे 30 से डे 45, इस तरह से कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है. एवरी सैटरडे एक ग्रुप क्लास होगा जो मैं खुद लूंगी. आई एम सीइंग एक वीक में स्टूडेंट के, एंड बिलीव मी वो सैटरडे क्लास मेरे लिए इतना, मैं जब सैटरडे क्लास में जाती हूँ, ऑफ कोर्स आई एम वेरी टायर्ड, एंड ऑफ द वीक एंड ऑलरेडी वीकेंड मूड, मुझे लगता है यार लेना पड़ेगा. मैं वो क्लास लेते लेते इतनी पम्प्ड अप हो जाती हूँ, इतनी हैप्पी हो जाती हूँ, बिकॉज वो जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो हर हफ्ते उनका इतना सा इम्प्रूवमेंट हो, बट इम्प्रूवमेंट होता है. एंड आई एम सीइंग दैट इम्प्रूवमेंट वीक बाय वीक. तो दिस पर्सनलाइज्ड टच, नंबर 1 देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सनलाइजेशन. नंबर 2 देयर इज इवैल्यूएशन ऑन एवरी स्टेप. जब आप आओगे और आप डेमो लोगे, उसके साथ हमारा एक इवैल्यूएशन होगा, एंड एवरी 15 डेज इवैल्यूएशन होगा. ये सिर्फ हमें नहीं बता रहा है कि आपके कितना इंप्रूव कर रहे हो, ये आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ मेरे 21 आए थे पिछली बार आउट ऑफ 50, इस बार मेरे 27 आए, आई हैव इम्प्रूव्ड. तो दिस गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि वट एवर इज गोइंग ऑन विद मी इज गिविंग द रिजल्ट्स एंड आई एम हैप्पी विद इट. So this is the methodology that we use. So मैम, आपने बात करी कि आपको आपके स्टूडेंट्स जब अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा लाइक आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि येस माय टीम इज डूइंग गुड, मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरे जो ट्रेनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एवरीवन इज डूइंग गुड इन देयर लाइफ. आई वांटेड टू आस्क यू व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एज अ कंपनी? See, basically, like I told you that I know what works and what doesn't. So I'm very particular about what I'm delivering to our students. So I will say my biggest strength is that I'm sticking to those methodologies by hook or by crook. I am not going to compromise on the quality just to achieve something else. I'll give you an example. I have one course which is one-on-one classes. One-on-one live interactive classes is our core USP. ठीक है, आप रहोगे, आपकी ट्रेनर रहेगी, सिर्फ आप रहोगे क्लास में, तो आप बोल पाओगे खुल के. यू विल मेक मिस्टेक्स, यू विल नॉट बी एम्बैरेस्ड, यू विल गेट पर्सनल फीडबैक. देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैम थोड़ा कम पैसा करके आप ग्रुप क्लासेस क्यों नहीं ऐड करते हो? ग्रुप क्लासेस
is a good thing for a student who already knows English. English तो आती है, अब मुझे बस प्रैक्टिस करना है 4 लोगों के साथ जिससे कि मैं और फ्लुएंट हो जाऊं. स्विमिंग आती है, स्विमिंग कंपटीशन में जाने से पहले 4 और स्विमर्स के साथ मुझे स्विम करना है. पानी में डूब रहे हो तो फिर आप 4 लोगों के साथ नहीं कर सकते हो. डेफिनेटली. यू नीड अ पर्सनल कोच. गेटिंग इट? तो अब मुझे पता है आपको पर्सनलाइजेशन चाहिए. मेरी पर्सनलाइज कोर्स की कॉस्ट इतनी है. आई लिटरली फील बैड कि इतने सारे स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ सॉरी इससे कम में कुछ नहीं है. मैम हर जगह पे तो ये भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है, बिकॉज वहां पे सिर्फ बेचने बैठे हैं. सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज बट एजुकेशन को मैं इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती. आई गिव अ कोर्स दैट वर्क्स. आपको जब ये लगे कि दिस इज वर्थ द मनी, जो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, दिस नॉट एन एक्सपेंस. आपके लिए एक्सपेंस क्या है? आप आज गए, मूवी देखी, पैसा खर्च हुआ, पॉपकॉर्न खाया, पैसा खर्च हुआ, खत्म. टुमारो इट डज नॉट एग्जिस्ट. इन्वेस्टमेंट ये है कि आपने एक कोर्स लिया है, लाइफ टाइम 20 साल बाद भी आपको जो प्रमोशन मिल रहा है वो इस कोर्स की वजह से मिल रहा है. दैट्स एन इन्वेस्टमेंट. तो प्लीज स्टॉप थिंकिंग अबाउट द मनी पार्ट. तो मेरा यूएसपी यहाँ पर ये है कि आई गिव क्वालिटी क्लासेस इंस्टेड ऑफ गिविंग एनीथिंग दैट विल सेल. And that's working for me. The people who've seen the market and who've seen the goods and the bads, कि हाँ सस्ता कोर्स लेकर तो उन्होंने क्या ही दिया था, रिजल्ट तो नहीं आया, टाइम और वेस्ट हुआ और उतना पैसा भी वेस्ट हुआ. They come to me and they enroll like this. The people who have doubts, मैं कहती हूँ जाओ मार्केट ब्राउज करो, थोड़ा झेलोगे, लेकिन when you are confident that this is going to work for you, this will work. तो I think one-on-one classes पे stick रखना, इंटरैक्टिव क्लासेस पे नो रिकॉर्डिंग्स, नो थियोरिटिकल पीडीएफ्स, वो सब करके मैं दे सकती हूँ 1000-1200 में. बट आई डोंट वांट टू गिव समथिंग दैट विल नॉट वर्क फॉर यू. आई थिंक दैट्स अ थिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन. Appreciable. How do you see the English learning market today? See, to be very honest, English learning market is very diversified if we see it with the aspect of कितने लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं. आई हैव हर्ड समवन से दिस कि आप हवा में ऐसे स्टोन फेंकोगे, वो जाके जिसको लगेगा उसको इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी. दैट कॉमन दिस प्रॉब्लम इज इन द मार्केट. एवरी अदर पर्सन हैज अ प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन. मैंने आपको अपने क्वेश्चंस में आंसर किया था कि क्यों है वो स्कूल एंड कॉलेज का गैप. नाउ हाउ मेनी ऑफ देम कैन आइडेंटिफाई दिस एज अ प्रॉब्लम? वेरी फ्यू. अरे ये तो बहुत महंगा कोर्स है, अरे इसमें क्यों इन्वेस्ट करना है, हम चलते हैं, छोड़ो. 1 साल इधर उधर मार्केट में रिजेक्शंस एंड कहीं ना कहीं फेलियर्स, कहीं ना कहीं डाउनफॉल्स करके आओगे, मैम कोर्स लेना है. आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि दिस इज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. नंबर 1, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. नंबर 2, इट इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय द यूथ दैट इट इज अ बिग प्रॉब्लम. एंड मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम है, कभी सॉल्व नहीं होगी, आपको तो कोर्स लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंग्लिश जरूरी है. इंग्लिश जरूरी कोई और लोगों ने बनाई है. आई एम जस्ट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम फॉर यू. गेटिंग इट? सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है कि मार्केट बहुत बड़ा है, बट पीपल आर नॉट अवेयर इन दिस मार्केट ऑफ हाउ मच दिस इज इफेक्टिव देम एंड हाउ सून दे नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ दिस. जब जैसे वो उनके अंदर अवेकनिंग आती है दैट भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, इसके आगे नहीं है कुछ और, they come to me and they take the course. So ma'am, my next question is with you. What kind of transformation do students typically experience? Okay, so this is also very interesting questions because I have so many stories around it, personal stories. Okay. But of course I cannot tell all of that to you, but one thing I can tell you is that the transformation is very evident. It is very visible. सबसे पहले the students who come to me, they ask me, मैम इंग्लिश बोलने लग जाएंगे ना, मैम कितने दिन में बोलने लग जाएंगे? I say forget all of that. स्टार्ट करो जर्नी और मुझे तुम बताओगे कि कैसा लग रहा है तुम्हें. Within a week or 2 they start seeing the confidence in themselves. इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी अभी नहीं, टाइम लगेगा, बट कॉन्फिडेंस आएगा. सी अगेन कमिंग टू द स्विमिंग, बिकॉज वी आर स्टिकिंग टू एन एग्जाम्पल. हम लोग अभी दोनों पूल में रहते हैं थोड़ी देर. ओके. आप पूल में गए, पानी में रहने का कॉन्फिडेंस आना चाहिए पहले. एग्जैक्टली. हाथ पैर मारते रहोगे, डूबोगे. ऑब्वियसली वी गिव यू दैट कॉन्फिडेंस फर्स्ट. तो जो फर्स्ट चेंज है वो है कॉन्फिडेंस.
आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये लैंग्वेज बोलकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, एंड दैट विल ओनली हैपन विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हम आपको प्रैक्टिस कराते जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, आपकी मिस्टेक्स अभी वही हैं। सेकेंड स्टेप इज धीरे धीरे मिस्टेक्स कम हो रही हैं। Right. Because of the consistent practice, your mistakes are becoming lesser. The confidence is going higher. Third step, the final step, is the big change. इंटरव्यूज नहीं क्रैक कर पा रहे थे, इंटरव्यूज क्रैक हो गए, प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, प्रमोशंस हो गए। मेरे पास तो ऐसे भी केसेस आए हैं कि मैम लड़की से शादी तय हुई है, शी इज गुड इन इंग्लिश, मुझे कॉम्प्लेक्स होता है लिटरली। तो थोड़े थोड़े हर फेज ऑफ लाइफ में आप कैसे उस गैप को क्रॉस करो, एक चीज की कमी है और उसकी वजह से हम लेट डाउन हो रहे हैं, बिल्कुल वो फीलिंग आप एहसास नहीं कर सकते उसकी जब तक कि बिल्कुल। आप खुद लेट खुद डाउन नहीं होगा। बिल्कुल। तो मैं वो नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बट जब स्टूडेंट्स मेरे पास, आई लिटरली कैन टेल यू, आई हैड अ स्टूडेंट हु वाज गेटिंग सुसाइडल थॉट्स हाँ, because of getting rejected in interviews. Oh my My God. career is doomed. And Oh my imagine God. if she's coming and telling me that, ma'am, I got the job and this is because of English destination. So the problem over here is that I cannot name these students. I cannot bring them in front of the camera. हमारे यहाँ एक इशू ये भी हो जाता है प्राइवेसी का बहुत बड़ा। They are already in their careers. They are at some position. People know them. They don't want to be shown on social media as people who are learning English. ये एक बहुत बड़ा टैबू बन जाता है। राइट। गेटिंग इट कि मुझे इंग्लिश सीखने के लिए क्लासेस लेना पड़ रहे हैं, मुझे किसी को ये बात पता ना चले, एंड आई रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। इस टाइम पे मैं भी ऐसा कुछ सीखूंगी जो मुझे सालों पहले आ जाना चाहिए था, तो आई विल ऑल्सो हैव दैट काइंड ऑफ हेजिटेशन कि किसी को पता ना चले। सो दैट इज वेयर आई हैव अ लिटिल प्रॉब्लम with showing testimonials of real students. Students do not want to come with their face on the screen or with their names on the screen and show anyone. Of course, if I have to show such classes, if I have to show such clips, I take their permission. Are you okay with this? And when they give the permission, I show it. Because then again, मैं जितनी भी बैठ के यहाँ बातें कर लूँ, until and unless हमारे learners को real students नहीं दिखते कि दिखाइए किसने आपके यहाँ सीखा है, टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक्स, रिव्यूज, आज के टाइम पे वही वर्क करता है। लिटरली 1% ऑफ माई स्टूडेंट्स आई एम एबल टू शो, बाकी सब अंडर द कवर है। एंड व्हेन दे हैव रिक्वेस्टेड दिस प्राइवेसी फ्रॉम मी, आई कैन नॉट बी द विलन एंड नॉट रिस्पेक्ट दैट। दे हैव ट्रस्टेड मी विद समथिंग, डेफिनेटली आई हैव टू। तो कहीं ना कहीं मैं इतनी स्टोरीज ला नहीं पाती हूँ इन ओपन, बट आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज जहाँ पे वो बिग चेंज स्टूडेंट्स ने देखा है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, माई कंपनी, माई टीम, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि हम वो चेंज उन स्टूडेंट्स की लाइफ में ला पाए। Okay, ma'am. What are some myths people believing about English learning? देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स, ऑफ कोर्स। मिथ्स सही करते करते ही मेरे सारे वेबिनार्स निकल जाते हैं, मेरे सारे कॉल्स निकल जाती हैं, क्योंकि वही सारे स्टूडेंट्स जो समझते हैं कि हम इंग्लिश अपने आप से सीख लेंगे। दैट इज़ द बिगेस्ट मिथ। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर रही हूँ, बट मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ। हिंदी स्पीकिंग कंट्री है ये, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप जाओ बाहर रहकर भी, आई एम टेलिंग यू, माई फादर, he was from a government Hindi medium school. His English is better than mine. Why? Because he stayed 40 years in Gulf. उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था other than start speaking good English. तो but then उसमें भी आपको 1-2 साल लग जाता है। Right. तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि इंडिया के एनवायरनमेंट में आप अपने आप से इंग्लिश यूँ सीख जाओगे? Right. सेकेंडली, आप अपने आप को वो टाइम दे रहे हो, आप प्रैक्टिस करने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हो। उस टाइम में आपको कहीं पर उस चीज़ को दिखाना नहीं है। कल आपको मीटिंग में बोलना है, आज आप अपनी इंग्लिश सही नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। आप ऑलरेडी करियर में हो। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला आप स्विमिंग सीखने जा रहे हो। बिल्कुल। आप स्विमिंग तब सीखने जा रहे हो जब कंपटीशन चल रहा है। Definitely. There are swimmers already racing and winning that race. तो you have to be in the race and learn swimming. तो वो अपने आप से बैठ के आप घर में पीसफुली 1-2 साल में कर लोगे, a little difficult. Secondly, group classes, recorded sessions, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर ये आपको इंग्लिश सिखा सकती होती हैं, then of course I would have taken that into my course as well. This can only become a part and parcel. जैसे मेरे जब स्टूडेंट्स को बोलती हूँ that come to my course and we'll 100% guaranteed results हम देंगे, मैं उसके साथ हमेशा मेंशन करती हूँ terms and conditions apply. Why?
because I cannot give you a guarantee of improving your English if you are not giving me something in return. Right. मैम मुझे क्या देना है? नंबर 1, क्लासेस में रेगुलर रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे रोज. नंबर 2, क्लासेस के बाद हमारी ट्रेनर आपको जो बोल रही है, मैं आपको जो बोल रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपने घर में अपने लिए एक एनवायरनमेंट बनाइए जिससे कि इंग्लिश से आप इन टच रहें. 30 मिनट्स ऑफ क्लास से कोई मैजिक हो जाएगा? नो, Not possible. बट वी आर गाइडिंग यू कि उन 30 मिनट्स के अलावा क्या करो. इंग्लिश मूवी देखो विद द सबटाइटल्स. सिर्फ देखकर एंटरटेन हो रहे हैं, क्या मूवी थी? नो, पॉज करो, हर डायलॉग को रिपीट करो. इतना पेशेंस ला सकते हो? यू गिव मी ऑल ऑफ दिस दैट आई एम गाइडिंग यू. पहले ये करो, फिर ये करो. वी हैव अ होल सेट ऑफ होम प्रैक्टिस कि घर में आपको क्या क्या करना है. आप वो सब करो, मैं आपको रिजल्ट्स गारंटी कर रही हूँ. तो मिथ्स है कि इंग्लिश कैन बी लर्नड वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली, और उसके अराउंड सारे छोटे छोटे मिथ्स हैं दैट वी बस्ट व्हेन पीपल कम टू आवर कोर्स. All right. Ma'am, if someone listening this right now is struggling with English, what would you tell them? Everything that I've told you today in this podcast was for them. उन्हें सुनना है और समझना है. और मैं उनसे एक बात यही कहूँगी कि कॉन्फिडेंस इंग्लिश बोलने का नहीं है, बट कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो. यू कैन लर्न हाउ टू कम्युनिकेट बेटर, डेफिनेटली, बट यू हैव टू टेक द राइट स्टेप्स. Do not delay this process. I feel very bad when a student says that, ma'am, हाँ सीखना है, I will let you know, I will let you know, गायब. And after 6 months वो आते हैं, मैम अब ज्वाइन करना है. 6 months of your life is gone thinking and thinking. So number 1, I'm not saying join this course. मैं सेल नहीं कर रही हूँ यहाँ. मैं ये बोल रही हूँ राइट प्रैक्टिसेस स्टार्ट करो ASAP. And number 2, have the confidence over yourself. Don't lose hope. English is very big in today's India because of the corporate culture that has been created by some few people. But उसकी वजह से आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाओगे, वो सच नहीं है. Believe in yourself, take help from resources, get better with your English, and there is hope in everything. So just hold on to that hope and keep getting better. So, ma'am, my next question is with you. Where can people learn more about English Destination? Okay, so you can visit our website. We have a social media page. There are numbers present on the website. You can put a query. You have a Google form, and our team will connect with you. All of that. So we are everywhere. And before anything, I would simply say go on Google reviews and check our reviews because I'm proud of that. That's all genuine and that's all created by our students. And get in touch with our team. First, you'll have an evaluation session wherein the trainer will take your demo. आपको पूरा समझ में आएगा कि क्लासेस में आपके साथ क्या क्या होने वाला है. वो आपको एक डेमो देगी. नंबर 2, she'll evaluate your English. Right now आप कहाँ हो, कितने महीने में आप कहाँ पहुँचोगे, she'll give you a proper road map. And number 3, being that transparent and honest course that we are, the same trainer who's taking your demo cum evaluation will take your regular classes if you join us. तो आपका जो गाइडेंस है वो आपको किससे मिलने वाला है, that you know beforehand. एक बार आपका वो डेमो का evaluation हो जाएगा, the counselor will get in touch with you, tell you about the courses, the prices, you will enroll and your classes will begin. The trainer will be in touch with you for your daily classes, but in that group itself, I am there, my team member is there, so we are always there if you find any difficulty. Time change करना है, for that matter, मैंने बताया ऐसे भी केसेस आए कि ट्रेनर नहीं समझ में आ रही है, ट्रेनर चेंज करना है, we are there to assist. And with that, बिल्कुल hassle free आपके क्लासेस चलते रहेंगे and you will keep seeing the change. That is how our classes go and that is how people connect with us. Thank you so much for coming and giving us time, ma'am. It was lovely, lovely talking to you. Same here. I felt it nice too. Thank you, ma'am.